Yes, hello students. Today we do exercise 1.5. Regarding this exercise, firstly we study some concepts like first concept is sum of two rational numbers is rational number. है ना, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर है तो उनका सम भी क्या होगा, रैशनल होगा. लाइक 1/2 प्लस 3/5. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 10. आफ्टर दैट 5 प्लस 3 2 6, दैट इज 11/10. दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर. बट व्हाट अबाउट सम ऑफ टू irrational number? Two irrational number. There is two possibility. It may be a rational number or it may be a irrational number. Like first example अगर मैं दूँ तो sum of two rational number, sum of two irrational number, like first is √23 and second one is 5 minus √23. तो हमारे पास एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या √23 और सेकंड इरेशनल नंबर क्या 5 माइनस √23. तो अगर हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, 5 आ रहा है एंड 5 इज रेशनल. सो वी कैन नॉट से कि ऑलवेज सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल. तो इट्स डिपेंड ऑन आवर नंबर्स विच व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स वी हैव. एंड इरेशनल नंबर लाइक अगर मैं 23 रूट ऑफ 23 ले लूं और रूट ऑफ 17 ले लो, कुछ भी ले लो, we can't say this is rational, this is irrational. We know that if the root of prime number is always irrational. ठीक है ना. तो इसलिए दो पॉसिबिलिटी आती है, रेशनल और इरेशनल के. नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर. प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. लाइक ये दोनों ले लो 1/2 एंड 3/5. तो दिस इज रैशनल नंबर 3/10. What about the product of two irrational number? Again, two cases are there. One is rational number, result is rational number, or second is irrational number. Example is √5 into √5. √5 into √5 होता है 5. तो this is rational number. If I multiply √5 into √10, the result is √50. This is again a irrational number. So it's all about the rational or irrational numbers. What is sum of two irrational number and what is the sum of two rational number and product. So on this concept today we do exercise 1.5 and we have some identities also, like identities which already we studied in 8th class. The four identities we already studied. Like first one is a plus b का whole square, that is a square plus b square plus 2ab. And second one is a minus b का whole square, that is a square plus b square minus 2ab. And third one is a square minus b square. The result is a plus b and a minus b. And the fourth one is x plus a x plus b. The result is x square plus a plus b into x plus ab. These four identities we already studied in 8th class. In this exercise I also use these four identities. So now I start exercise 1.5. Yes, next question. First question is classify the following number as rational or irrational. तो फर्स्ट नंबर में हमारे पास 2 - √5. दिस इज
एंड दिस इज इरेशनल, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा हमारे पास, इरेशनल। ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, रूट 23 से रूट 23 कैंसल एंड द रिजल्ट इज 3, दिस इज रेशनल नंबर। एंड थर्ड वन इज 2 रूट 7 and 7 root 7. Root 7 to root 7 cancel and result is 2 by 7 and this is rational number. And the fourth one is 1 by root 2. ठीक है ना, तो ये 1 हमारे पास क्या रैशनल और रूट 2 क्या है इरेशनल, तो रिजल्ट इज इरेशनल। And the fifth one is 2 pi. We know that already, that is pi is irrational. So 2 pi is also a irrational. So write down it. Start. Yes. Next question we have simplify each of following expression. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, जो मैंने अभी 4 आइडेंटिटीज बताई थी। जैसे फर्स्ट है हमारे पास x प्लस रूट 3, सॉरी x 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। तो वी कंपेयर दिस विद द आइडेंटिटी x प्लस a एंड y प्लस b। तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए बी। तो एक्स वाई क्या आएगा हमारे पास, एक्स हमारे पास क्या है 3 और वाई क्या है 2। हाँ, क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट 3 इंटू में 2 प्लस रूट 2। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि चारों टर्म ही हमारे पास क्या डिफरेंट है। तो क्या आएगा, 3 को फर्स्टली किससे करेंगे, 2 से, आफ्टर 3 को किससे करेंगे, रूट 2 से, नेक्स्ट 2 को किससे करना है, रूट 3 से, एंड फिर रूट 3 को किससे करना है, रूट 2 से। देखो 3 2 सा 6, 3 रूट 2 एंड 2 रूट 3 प्लस, देखो दोनों टर्म्स ही किसकी है, रूट्स की है। तो रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होगा, जस्ट अंदर वाली टर्म्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, दैट इज 3 इंटू 2। तो रिजल्ट हमारे पास क्या देगा, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। We have a identity a plus b का whole square. Result is a square plus b square plus 2ab. तो वही कंपेयर करें अगर हम, तो a हमारे पास क्या आएगा, रूट 5 और b क्या आएगा, रूट 2। तो जस्ट कंपेयर इट एंड राइट द रिजल्ट, दैट इज रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू में रूट 5 इंटू रूट 2। स्क्वायर का मतलब क्या, बेसिकली 2 टाइम्स लिखना सेम टर्म को, रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 2 इंटू, अभी मैंने बताया था ऊपर भी, अगर डिफरेंट टर्म्स है तो रूट के अंदर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर मल्टीप्लाई, दैट इज 5 इंटू 2। जब हम सेम टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5 कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 5। ऐसे ही रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आएगा, 2, और रिजल्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 रूट 10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है ना। नेक्स्ट वी डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2 का इंटू में रूट 5 प्लस रूट 2। Just use identity, that is a square minus b square equals to a plus b, a minus b। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, कंपेयर करें अगर हम, तो a हमारे पास क्या बन रहा है, रूट 5 और b क्या बन रहा है हमारे पास, रूट 2।
तो जस्ट हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 इंटू √5 और √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू √2। सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3। यस, नोट डाउन इट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। देखो √9.3 और नंबर लाइन थोड़ा डिफरेंट होगा। जो हमने पहले की है वो जस्ट क्या था, √5, √2, √3, बट यहाँ पर क्या रूट कहते हैं डेसिमल है, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्टली मैं समझा रही हूँ, उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, स्टेप्स लिखूंगी। तो फर्स्ट क्या, यस, तो हमें फर्स्टली क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और ये लाइन क्या करेंगे हम, 9.3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, 9.3 सेंटीमीटर की। लेबलिंग कर दो इसको O और A, ठीक है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इसको 1 सेंटीमीटर और आगे प्रोड्यूस करना है। 1 सेंटीमीटर आगे प्रोड्यूस करेंगे और ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, C, ठीक है ना। फर्स्टली हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है O to A दैट इज 9.3 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट 1 सेंटीमीटर आगे प्रोड्यूस करनी है लाइन, वो क्या हमारे पास AC। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कंप्लीट लाइन बेसिकली क्या बन गई, OC। OC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर कंपास रख के जस्ट आर्क लगाएंगे इस तरह से, और फिर C पर कंपास रख के आर्क लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आफ्टर दैट इस पॉइंट पर कंपास रख के क्या करना है, हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या ड्रॉ हो गया, सेमी सर्कल। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस A पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है, वही कंपास की हेल्प से, जस्ट जो ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आफ्टर दैट जस्ट ओपन योर कंपास फ्रॉम A to E एंड कंपास ओपन करने के बाद इसको इस तरह से मूव करो, ठीक है ना, टुवर्ड्स डाउन, टुवर्ड्स लाइन दैट इज दिस, एंड प्रोड्यूस इट टू E point and the result AE is our √9.3. Yes, hopefully you cleared that question. Now I write down the step of this question. Yes, write down the step of this question. Represent √9.3 on number line. Yes. Now next question we have. Recall pi is defined as a rational ratio of circumference of a circle to its diameter d, that is pi equals to C by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखो जैसे इसमें क्या कह रहे हैं, बेसिकली जैसे हमारे पास क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ, सर्कमफ्रेंस C, एंड 2r को हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, क्योंकि ट्वाइस ऑफ रेडियस इज डायमीटर, तो दैट मीन्स पाई इक्वल्स टू क्या आ गया, C by d। बट पाई हमारे पास क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दैट इट इज इरेशनल, एंड C by d इज क्वाइट सिमिलर टू P by Q। तो P by Q किस टाइप के नंबर होते हैं, वो होते हैं रेशनल टाइप के। तो ये यही कह रहे हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो ठीक है ना, अब हमें यहाँ पर ये कुछ ये कह रहे हैं, इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। बेसिकली ये कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन तो तब होती है ना जब हमें गिवन और C और D किस टाइप के नंबर है। हमें इसमें कुछ मेंशन नहीं है C और D किस टाइप के नंबर है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आइदर C और D में से दोनों ही इरेशनल नंबर हो और दोनों ही क्या, दोनों में से एक ही इरेशनल हो। तो कुछ नहीं कह सकते विदाउट नोइंग अबाउट दैट कि C और D किस टाइप के नंबर है। तो इसका आंसर यही है सोल्यूशन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, आइदर C और D में भी इरेशनल, दोनों में से कोई भी क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। Actually, while measuring C or D with the scale or any other measuring device, we get an appear rational value, that is pi equals to C by D. Okay. Now we do next question.
रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखो डिनोमिनेटर कैसे रैशनलाइज होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो बेसिकली हमारा यही मोटिव होता है कि डिनोमिनेटर में क्या रूट प्रेजेंट ना रहे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, रैशनलाइज की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो √7 है तो √7 से ही मल्टीप्लाई और √7 से ही डिवाइड, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 × √7 एंड आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि √a × √a क्या होता है, a होता है, तो वही √7 × √7 क्या होगा 7। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1/√7 माइनस √6। जब भी हमारे पास दो टर्म्स है डिनोमिनेटर में, आइदर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वी ऑलवेज रैशनलाइज विद टेकिंग अपोजिट साइन टू गिवन साइन। यहाँ पर गिवन साइन क्या है नेगेटिव, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेके इसको क्या कर दो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। यस, 1 × √7 प्लस √6 क्या आएगा √7 प्लस √6 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी को हम क्या कह सकते हैं a² माइनस b², ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी यूज होगी हमारे पास, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर मतलब √7 × √7, तो रिजल्ट इज 7 एंड सिमिलरली 6, तो वी फाइंड √7 प्लस √6 इज अवर आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट वी हैव 1/√7 माइनस 2, तो इसको भी रैशनलाइज करेंगे टेकिंग अपोजिट साइन √7 प्लस 2 and √7 plus 2. Just multiply 1/√7 plus 2 and after that in denominator we use same formula, that is a minus b into a plus b equals to a² minus b²। तो रिजल्ट क्या आएगा √7² माइनस 2², तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में √7 × √7 7, 2 × 2 4, तो यहाँ से आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में 3, ये हमारे क्या हो जाएंगे रिजल्ट, ठीक है ना। तो रैशनलाइज। यस, नेक्स्ट वी डू एक्सरसाइज 1.6। फॉर दिस फर्स्टली वी सी कॉन्सेप्ट ऑफ 1.6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। बेसिकली क्या है हमारे पास, जैसे अगर इसके कुछ लॉज पड़ेंगे a⁻m एंड ab⁻m, ठीक है, वेयर a एंड b आर बेस एंड m इज पावर, या फिर हम कह सकते हैं m इज अ पावर और m इज अ एक्सपोनेंट ऑफ a एंड b। अगर पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यस, क्लियर हो गया। साथ साथ मैं एक एग्जांपल भी दे देती हूँ, जैसे 3⁻2 एंड 5⁻2, so we can write it as 3 × 5 whole raised to power 2, that is 15⁻2 and result is 225. Second property is a⁻m and a⁻n, base same है, powers क्या है different, powers या exponent are different, then we do base raised to power m plus n, ठीक है ना। क्या होगा बेस सेम रहेगा a और पावर्स को क्या कर देंगे ऐड। एग्जाम्पल सेम 3⁻2 3⁻4, तो रिजल्ट इज 3⁻2 प्लस 4, दैट इज 3⁻6, ठीक है ना। अगेन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर a⁻m डिवाइड बाय a⁻n, कंडीशन इज दैट कि यहाँ पर हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि m ग्रेटर है m से, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा a⁻m माइनस n। तो बेसिकली क्या है, अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड होना है, डिवाइड में है तो क्या होगी पावर सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे 3⁻4 डिवाइड बाय 3⁻2, तो रिजल्ट इज 3⁻4 माइनस 2 एंड रिजल्ट इज 3⁻2, दैट इज 9। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी वी हैव a⁻p and whole power to q,
द रिजल्ट इज a रेज टू पावर pq. तो एग्जाम्पल अगर लेके चले 2 रेज टू पावर 2 एंड होल पावर 3, रिजल्ट इज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 यानी 6, 2 रेज टू पावर 6. और 2 रेज टू पावर क्या होता है 6, वो होता है 64. ठीक है, यस क्लियर हो गए सभी प्रॉपर्टी. नाउ वी डू क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 1. Yes, first question we have find 64 raised to power 1 by 2 and 125 raised to power 1 by 3. So firstly we do factorization, prime factorization of 64. That is 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 raised to power 6 एंड 1 by 2. अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी a रेज टू पावर p होल रेज टू पावर q. रिजल्ट इज a रेज टू पावर pq. देन वी यूज दिस प्रॉपर्टी एंड रिजल्ट इज 2 रेज टू पावर 6 इंटू 1 by 2 यानी 2 रेज टू पावर 3. और 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2. रिजल्ट इज 8. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वी यूज इन 125. फैक्टराइज इट 125 5 25 5 5 5 1 यानी 5 रेज टू पावर 3. सेम प्रॉपर्टी, तो 5 की पावर में 3 इंटू 1 by 3. 3 से 3 कैंसल, रिजल्ट इज 5. ठीक है, नेक्स्ट वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन है 9 रेज टू पावर 3 by 2. फर्स्टली फैक्टराइज 9 3 3 3 1 यानी 3 रेज टू पावर 2 एंड होल पावर 3 by 2. अगेन वी यूज दैट प्रॉपर्टी a रेज टू पावर p और होल पावर q, दैट इज a रेज टू पावर pq. तो यहाँ से 3 की पावर में क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 by 2. 2 से 2 कैंसल, रिजल्ट इज 3 रेज टू पावर 3 यानी 3 3 9 9 3 27. Yes, next question. 16 raised to power 3 by 4. Again factorize it and we get 2 raised to power 4. 3 divided by 4. Result is 2 की पावर में क्या आएगा 4 into 3 by 4. 4 से 4 cancel, 2 raised to power 3. तो 2 into 2 into 2. Result is 8. Next, third part 125 raised to power minus 1 by 3. Factorize it. We get 125 को factorize करेंगे 5, 25, 5, 5, 5, 1. तो 5 raised to power 3 और whole power 1 by 3. तो 5 3 इंटू में 1 by 3. 3 से 3 कैंसल, 5 raised to power minus 1 and the result is 1 by 5. So this question is our complete. Next question, question number 3. Simplify all these terms. First we have 2 raised to power 2 by 3 and 2 raised to power 1 by 5. So we have property a raised to power m, a raised to power n. If base same, we add this power m plus n. तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा 2 raised to power 2 by 3 plus 1 by 5. Take LCM in power 15 and 10 plus 3. The result is 2 raised to power 13 by 15. Yes, hopefully you cleared it. Next question. Second question. 1 raised to power 1 upon 3 raised to power 3 whole raised to power 7. So we can write it as 1 by 3. Take 3 raised to power 3 in numerator, 3 raised to power minus 3. Yes, I think ये क्लियर हो गया होगा. अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है उसको हम न्यूमिनेटर में लेके जाए तो वो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव. Now we apply property a raised to power p whole raised to power q. Result is a raised to power pq. So then we get 3 raised to power minus 3 into 7. Result is 3 raised to power minus 21. You can write it as 3 raised to power minus 21 or 1 upon में 3 raised to power 21. Both are equal.
Yes, next third part. 11 raised to power 1 by 2, 11 raised to power 1 by 4. Yes, if base are same and powers are different in divide, we just subtract power, that is a raised to power m minus n, and the result is 11 raised to power 1 by 2 minus 1 by 4. 11 raised to power 4 LCM 2 minus 1, that is 11 raised to power 1 by 4. Yes, hopefully clear हो रहे हैं सारे मुझे लगता है. And the next property is, next question is fourth one. 7 raised to power 1 by 2, 8 raised to power 1 by 2. So if we have a raised to power p, a raised to power q, the result is b raised to power p. Then result is ab whole raised to power p. Then we use this in this question. We get 7 into 8 whole raised to power 1 by 2, that is 56 raised to power 1 by 2. ठीक है ना. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. तो जो भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो हम कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और आफ्टर दैट आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. होपफुली ये क्लियर हो गया.